قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الوان إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. سورہ دخان کی آیت کریمہ جس کی تلاوت کی سعادت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، کائنات کا پروردگار اعلان فرما رہا ہے: وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم نے جو انہیں کائنات پر چنا ہے اور منتخب کیا ہے، اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ صاحبان علم تھے. اللہ کی نظر میں انتخاب کا سبب اور انتخاب کی وجہ علم ہوتا ہے. میں نے کل اپنی بات کو یہاں تک پہنچایا تھا. انسان فطری اعتبار سے، نیچرلی اعتبار سے ایک رہبر کو چاہتا ہے، آئیڈیل کو چاہتا ہے. اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ایک سیمپل چاہتا ہے، نمونہ چاہتا ہے جس کو دیکھ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھائے. اب یہ نمونہ اسے مل جاتا ہے، کبھی کبھی نہیں ملتا. جب مل جاتا ہے تو اس کی زندگی کامیاب بن جاتی ہے، اور جب اس کو کوئی نمونہ نہیں ملتا تو یہیں سے اس کی زندگی میں ناکامیاں شروع ہوتی ہیں. یا لفظوں کو بدل کر اصطلاح شریعت میں یوں کہوں کہ اگر کسی کو نمونہ مل جاتا ہے تو وہ سعید کہلاتا ہے، اور نمونہ نہیں ملتا تو شقی کہلاتا ہے. اور سادی اردو میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ جسے سیمپل اور نمونہ مل جاتا ہے تو وہ خوش بخت کہلاتا ہے، اور نہیں ملتا تو وہ بدبخت کہلاتا ہے. اصل بات نمونے کی ہے. اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ضرورت ہر آدمی کو ہے. ایک قدم بھی اگر آگے بڑھانا چاہے تو وہ بغیر نمونے کے نہیں بڑھا سکتا. آپ سے اچھی بات یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ کم سے کم مارکیٹ میں مال لانے کے لیے ایک سیمپل کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر سیمپل کے ہم کوئی بھی بات یا کوئی بھی مال نہیں بنا سکتے. ایک قدم پر بھی بچہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ رہبر نہ ہو. ہمارا کہنا یہ ہے جب تمہیں رہبر ماننا ہی ہے تو کسی پڑھے لکھے کو مانو. دیکھیے بڑی بات کہی ہے. جب تمہیں رہبر کے پیچھے چلنا ہی ہے، ہمیں پتا ہے چلو گے، ہمیں پتا ہے مانو گے، تو کم سے کم تمہارا رہبر پڑھا لکھا تو ہو. جو لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں، ہم ان سے گزارش یہی کرتے ہیں تقلید ضرور کرو گے، تم فطرت میں ہے، کسی کے پیچھے ضرور چلو گے. بس فرق یہ ہے اگر عالم کو چھوڑا تو جاہل کے پیچھے پیچھے چلو گے. یہی وجہ ہے تاریخ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے علی کو چھوڑا ان لوگوں نے ایسے ایسے لوگوں کو رہبر مانا جو جاہل بھی تھے، بزدل بھی تھے.
बड़ा जुमला कहा है। जो बुज़दिल भी थे, जाहिल भी थे। अब सब जाहिर सी बात है, दोनों रास्ते थे। एक रहबर पढ़ा लिखा था, एक रहबर जाहिल था, एक रहबर बुज़दिल था, एक रहबर शुजा था। एक ये कहता था जो पूछना है मुझसे मालूम कर लो, मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। एक रहबर ये कहता था जब मैं सीधा सीधा चलूं तो मेरे पीछे आ जाना, जब मैं कहीं रास्ते से भटक जाऊं तो मुझे रास्ता दिखा देना। अब मर्जी है चाहे इधर चले जाओ, मैं क्या कह रहा हूं जरा गौर फरमाइएगा। अब मर्जी है चाहे इधर चले जाओ चाहे उधर चले जाओ, तो गौर फरमाइएगा दोनों का नतीजा निकलेगा अजीजान मोहतरम। एक रहबर वो है कि जो किसी जंग में न किसी को मारा न अपने यहाँ जख्म खाया। भाई मेरी बात समझिएगा, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। एक रहबर वो है कि जिसने किसी भी जंग में ना किसी के जख्म मारा ना अपने जख्म खाया, क्योंकि मैदान में डटा होता तभी जो है इसके जख्म लगता यही किसी के मारता। एक वो रहबर है जिसकी शुजाअत के लिए आसमान से अल्लाह ने कसीदा भेजा। मैं क्या कह रहा हूं मेरा गौर फरमाइए। एक वो है जिसके लिए अल्लाह ने आसमान से कसीदा भेजा, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार। अब दोनों रास्ते हैं, चाहे इधर चले जाओ चाहे उधर चले जाओ। बहुत गौर से सुनिएगा, मैंने बड़ा जो है ग्राउंड तैयार किया है, तमहीद बनाइए। भाई सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले। जहां बात जंजीरी होती है तो वहां से हटना नहीं चाहिए। देखिए मैं कई बार कह चुका, मेरा काम मजलिस पढ़ना नहीं है, मेरा काम है क्लास पढ़ाना। मैं तो टीचर हूं, मुझे पता है कौन सा बच्चा किसका दिमाग कहां पर है। जरा गौर फरमाइए, दोनों तारीख ने नमूने लिखे। एक रहबर कौन था जिसने कहा कि मुझसे ज्यादा तो मदीने की औरतें जानती हैं। एक वो था, मैं जानता हूँ कौन सी आयत रात में नाजिल हुई, कौन सी आयत दिन में नाजिल हुई, मैं जानता हूँ कौन सी मक्के में नाजिल हुई, कौन सी मदीने में नाजिल हुई, कौन सी सफर में नाजिल हुई, कौन सी हजर में नाजिल हुई, मुहकम क्या है मुतशाबे क्या है मैं जानता हूँ, नासिक क्या है मंसूख क्या है मैं जानता हूँ, बातिन क्या है मैं जानता हूँ, जाहिर क्या है मैं जानता हूँ। एक वो था जिसने कहा तो था हमें किताब खुदा काफी है, मगर बिस्मिल्लाह तो बातों की बात थी, सूरह बकरा भी याद ना हो सका। मैं जुमला कहूँ अजीजान मोहतरम, दोनों रहबर बताए। अब रास्ता आपको इख्तियार करना है, बुज़दिल की तरफ जाओ या जाहिल की तरफ जाओ या शुजा की तरफ जाओ या आलिम की तरफ जाओ। जब रहबर दो तरह के थे तो इनको मानने वाले भी दो तरह के हुए। और गौर से सुनिएगा, बात ना किल्लत की है ना कसरत की है, बात तादाद की नहीं है, बात जो है क्वांटिटी की नहीं है। दो तरह के रहबर थे, एक रहबर जाहिल भी था बुज़दिल भी था, एक रहबर आलिम भी था शुजा भी था। अब इसके पीछे पीछे चलने वाले दो तरह के हुए। कुछ ऐसे थे जिन्होंने बुज़दिल को माना, कुछ ऐसे थे जिन्होंने शुजा को माना। नतीजा ये निकला जो बुज़दिल को मान रहे थे वो थे तो 56 वाले। मैं क्या करूं, बड़ा नतीजा दिया है। वो थे तो इतनी तादाद थी कि इमाम खुमैनी ने कहा था अगर एक एक बाल्टी पानी इसराइल पे हर मुसलमान डाल दे तो पानी में बह जाए, अगर एक एक मुट्ठी खाक हर मुसलमान इसराइल पे डाल दे तो वो मिट्टी में दब जाए। 56 मुल्कों की तादाद कितनी है, मगर क्योंकि रहबर बुज़दिल था तो यहूदियों के गुलाम बन गए। मगर एक मुट्ठी ईरान था क्योंकि रहबर शुजा था, इस वजह से कम होते हुए भी यहूदियों को घुटनों पे खड़ा कर दिया। सलावत कहिए मोहम्मद। एक बार और सलावत कहिए मोहम्मद। ये दोनों जो है रहबर की बात है। जुमला फिर सुनिएगा अजीजान मोहतरम, रहबर बाइज्जत है तो इज्जत मिलेगी। रहबर अगर बाइज्जत नहीं है, क्यों जहालत में इज्जत नहीं है, इज्जत इल्म में है। तो जहां इल्म है शुजाअत है
वहां उम्मत भी बाइज्जत है। और जहां शुजात नहीं है, अब जुमला पूरा सुनिएगा, मुल्क 56 है, इधर कितने हैं? 1 है। क्वांटिटी देखिए, सबकी देखिए करोड़ों में है, इधर कितने हैं? 8 या 9 करोड़। यही है ना, मगर दोनों का नतीजा कितना है? सारे खजाने 56 के पास, तेल के जखायर 56 के पास, सोने के मादनियात 56 के पास, काबे की मुतवल्ली 56 के पास, मक्के की मुतवल्ली 56 के पास, मदीने के मुतवल्ली 56 के पास। यहाँ छोटे जो है, कम जो है, उनके पास क्या है? उनके पास क्या है? न काबा है, न मदीना है, न मक्का है। मैं क्या करूंगा, गौर फरमाइए। मगर फिर भी मुकाबले पे आ गए। बात ये नहीं है कि अमेरिका को जो है, अमेरिका को मार लिया, बात मारने की नहीं है। बात ये है कि उसके मुकाबले पे आए, सर झुकाया नहीं, सर कटा दिया। मैं क्या करूंगा, गौर फरमाइए। बात ये नहीं है कि उसको मार लिया, बात ये है कि उसके मुकाबले पे आ गए। तो ये ताकत किसने दी? ये ताकत दी है। अगर रहबर शुजा न होता तो ताकत नहीं आती। ये शुजा था, तब इज्जत और ताकत आई। सलावत पढ़िए मोहम्मद। इस वजह से जरूरी है कि रहबर शुजा भी होना चाहिए, रहबर आलिम भी होना चाहिए। अब मैं वहां से लेकर, क्योंकि बात ये नहीं है, ये तो बहुत बड़ा सर्कल बना दिया मैंने, ये दुनिया का सर्कल है। सबसे छोटा सर्कल कहां से चलता है? घर से चलता है। इसका मतलब घर का रहबर भी आलिम भी हो, शुजा भी हो। बड़ा जुमला कहा है, याद रखिएगा। जब तक शुजा नहीं होगा, कोई फैसला नहीं ले सकता। मैं क्या कह रहा हूं, मेरा गौर फरमाइएगा। इसका मतलब चाहे घर हो या माशरा, अरे भाई, बातिल का मुकाबला करने के लिए हौसले और हिम्मत की जरूरत है। और हौसला और हिम्मत बगैर शुजात के नहीं मिल सकता। शुजात का मतलब क्या है? जानते हो, शुजात का मतलब ये नहीं है तलवार चलाना। शुजात का मतलब क्या है? अल्लाह ने हर इंसान को 3 कुव्वतें दी है। 3 कुव्वतें, कुव्वत इदराक, कुव्वत गज़ब, कुव्वत शहवत। हर आदमी को 3 कुव्वतों से नवाजा। कुव्वत इदराक, कुव्वत शहवत, कुव्वत गज़ब। तीनों कुव्वतें कम रहे तो तब भी बुरी, ज्यादा हो जाए तब भी बुरी, हद कंट्रोल में आए तब ये लायक तारीफ है। मसलन कुव्वत इदराक ज्यादा हो जाए तो मक्कारी, कुव्वत इदराक तर्क करना, यानी क्या मतलब? चीजों को हासिल करना, समझना। ज्यादा हो जाए तो मक्कारी, कम रह जाए तो बेवकूफी, और अगर दरमियान में रहे तो अक्लमंदी। मैं क्या कह रहा हूं, इसी वजह से मेरे मौला ने कहा था, अल अक्ल मा उबदा बिहिर रहमान वक्तसिबा बिहिल जिनान। अक्ल उसे कहते हैं जिसके जरिए माबूद की इबादत की जाए, जन्नत को हासिल किया जाए। किसी ने कहा, मौला फिर माफिया के पास क्या था? इमाम ने फरमाया, ये नुकरा, ये शैतानत थी, अक्ल नहीं है। मैं जुमला कहूं, बहुत से लोग मक्कारी को अक्ल समझते हैं, उसे अक्ल नहीं कहते। किसी को धोखा दे दिया, किसी का हक मान लिया, इसे मक्कारी तो कहा जाएगा, इसे धोखाबाजी तो कहा जाएगा। अक्ल उसे कहते हैं चाहे गैब की भी तात हो, अल्लाह की तात भी हो। सलावत पढ़िए मोहम्मद। इदराक बढ़ जाए तो इसे कहते क्या? मक्कारी। कम हो जाए तो उसे कहते बेवकूफी। इसी तरह कुव्वत शहवत, शहवत जानते हैं ना हर आदमी? भाई इन 3 तरह की मखलूक पैदा की है अल्लाह ने। आपका दर्जा क्यों ज्यादा है? फरिश्तों से आप क्यों है? अल्लाह ने उन्हें अक्ल महज से पैदा किया है। जानवरों को शहवत महज, उनके पास बस शहवत, फरिश्तों के पास बस अक्ल।
غور سے سنیے گا، میں بڑے جو ہے علمی بات کہہ رہا ہوں. جانوروں کے پاس شہوت محض، بس شہوت. فرشتوں کے پاس عقل محض، بس عقل، شہوت نہیں. اگر وہ گناہ کرنا بھی چاہے کر ہی نہیں سکتے. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. اگر جو ہے اگر فرشتے گناہ کرنا بھی چاہے، ہمارے استاد بڑا جملہ کہا کرتے تھے یہاں پر جو ہے تھوڑا سا ہنسنے ہنسانے کے لیے، کہ اگر فرشتوں کے اندر شہوت بھی ہوتی تو نہ جانے جنت کی گلیوں میں کتنی غزلیں لکھی جاتی، نہ جانے جو ہے جنت کی گلیوں میں جو ہے کتنی غزلیں لکھی جاتی. اور روز اللہ کے یہاں ایک نہ ایک فیصلہ ہوتا، قضیہ جاتا. کوئی نہ کوئی اور کہتی پروردگار آج مجھے اس نے چھوڑ دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے، اللہ نے وہ چھوڑنے کی طاقت بھی نہیں دی. کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے گا، اللہ نے وہ طاقت ہی نہیں دی. مگر انسان کو جو بنایا شہوت اور عقل دونوں سے بنایا، شہوت اور عقل دونوں سے بنایا. اب اگر یہ شہوت کا غلام ہو جائے تو جانور سے بدتر، اور اگر عقل کا تابع بن جائے تو فرشتوں سے افضل. میں کیا کروں گا غور فرمائیے، اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے، چاہے فرشتوں سے افضل بن جائے یا جانوروں سے بدتر بن جائے. متوجہ ہے عزیزان محترم. تو یہ شہوت اللہ نے سب کو دی ہے. اب شہوت جو ہے زیادہ ہو جائے تو اسے کہتے ہیں ہوس رانی. شہوت اگر زیادہ ہو جائے، غور کر رہے نا، شہوت چاہت یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے. جب جانور بکریاں کھیت میں جاتی ہیں تو بس کھانے لگتی ہیں، انہیں یہ بھی نہیں سوچنا ہوتا کہ یہ پڑوسی بھی میرا بھوکی ہے یا نہیں، بس اپنا پیٹ بھر جائے. یہ شہوت ہے. میری گاڑی شہوت، میرا بنگلہ شہوت، میری دنیا بن جاؤ یہ شہوت ہے. سب کچھ میں ہو جاؤ شہوت ہے. میرے گھر میں اے سی لگے مگر بھائی کے گھر میں پنکھا بھی نہ ہو، یہ شہوت ہے. قرآن میں کہتا ہے کمانے کا حق سب کو ہے مگر خرچ کرنے کا حق سب کو برابر. بڑا جملہ کا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے. واللہ فضل بعضهم على بعض في الرزق، اللہ نے بعض کو بعض کے اوپر رزق کے اعتبار سے فضیلت دی ہے. لیکن فمن الذی فضل براد اور لیکن وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں انہیں فضیلت ہے. خرچ کرنے میں سب برابر مگر دونوں جو ہے کمانے میں علیحدہ علیحدہ. کیا مطلب؟ فرق ہے یا نہیں ہے؟ میں بھی کما رہا ہوں وہ بھی کما رہا ہے تو دونوں برابر کیسے ہونے چاہیے؟ میرے پاس فریج ہے تو اس کے پاس کیوں ہو جب وہ کما نہیں رہا؟ کہ اسی وجہ سے تو زکات کو رکھا، اسی وجہ سے تو خمس کو رکھا. میں کیا کروں گا غور فرمائیے گا. ارے بھائی جب دونوں کے پاس اے سی ہوگا، دونوں کے پاس فریج ہوگا تو دونوں برابر ہو جائیں گے. شریعت کا یہ تمہاری کم عقلی ہے، دونوں برابر نہیں ہوئے اس لیے کہ ایک لینے والا ہے ایک دینے والا ہے. میں کیا کروں گا غور فرمائیے گا. ایک لینے والا ہے ایک دینے والا ہے. اسی وجہ سے جملہ کرو عزیزان محترم، جہاں بھی آپ کو ایسا ملے ایک کے پاس اے سی ملے ایک کے پاس پنکھا بھی نہ ملے تو سمجھ لے گا اے سی والے نے پنکھے والے کا حق مار لیا. میں بڑا جملہ کہا ہے، ایک چکن فرائی کھائے ایک کے پاس مسور کی دال بھی نہ ملے تو سمجھ لے گا مسور کی دال والے کا حق کھایا گیا. امام علی نیچر بلاغہ میں فرماتے ہیں اگر کہیں کسی پڑوس میں بھوکا ملے تو سمجھ لے گا اس کے پڑوسی نے اس کی روٹی کھا لی، اللہ نے بھیجی تو تھی، اگر یہ نہ چھینتا تو اس تک نہیں پہنچتی. شاید بات میری نہیں پہنچی عزیزان محترم. اسی وجہ سے جب آپ امام کے ظہور میں علامتیں دیکھتے ہیں، جب امام ظہور کریں گے اور امام کی حکومت قائم ہوگی تو کوالٹی حکومت کی کیا ہوگی؟ جہاں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایک گھاٹ کے اوپر بکری بھی پانی پیے گی
शेर या भेड़िया भी पिएगा। क्या मतलब? यानी बकरी को भेड़िए से, मैं क्या कह रहा हूं और फरमाइए, ये क्या है? हुकूमत है इमाम की, ये हुकूमत है इमाम की। लेकिन जहां भेड़ियों से डर हो, कुछ समाज के भेड़िए भी होते हैं जिनसे डर होता है। एक क्वालिटी तो ये है। दूसरी क्वालिटी क्या है? ये बड़ा गौर से सुनने की बात है। दूसरी क्वालिटी ये है इमाम की हुकूमत की कि इमाम की हुकूमत में खुम्स निकाल कर जब हम किसी को देंगे तो मुस्तहक ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। भाई फिर गौर से सुनिएगा, मुस्तहक रुकून शरिया का तलाश करने से भी नहीं मिलेगा। फितरा निकाला, टेंशन इस बात की किसे दो? अरे सारे तो अमीर है भाई। मुस्तहक कब पैदा होता है? जब कोई किसी का हक मार ले। मैं क्या करूंगा और फरमाइएगा, अरे जब किसी का हक मारा ही नहीं जाएगा तो मुस्तहक कैसे मिलेगा? सलावत पढ़िए मोहम्मद वाल। कहां पहुंच गए अजीजा ने मोहतरम? क्या बता रहा था? 3 कुव्वत अल्लाह ने दी है। कुव्वत शहवत है, कुव्वत इदराक है। मेरा जो मौजू था कुव्वत गज़ब था। गज़ब, गुस्से की कुव्वत। गुस्सा, गुस्सा बहुत नीमत है। अगर गुस्सा न हो तो नामूस की हिफाजत नहीं कर सकता। अगर गुस्सा न हो तो दुश्मन से मुकाबला नहीं, हर मैदान में भागेगा। अगर गुस्सा न हो, क्या कहा था मोहम्मद हनाफिया से? ताक पे ताक चढ़ाना। ये जुमले है ये नहीं है? ताक पे ताक चढ़ाना यानी गुस्सा हो तुम्हें तो क्या मतलब? क़ुव्वत ग़ज़ब अगर ज्यादा बढ़ जाए तो इसी को खैर ग़ज़ब कहा जाता है, बुरा है। और अगर घट जाए तो इसी को बुज़दिली कहा जाता है, ये भी गलत है। ना बुज़दिली से ही ना गुस्सा से ही, बीच का क्या रास्ता है? वक्त आए, मैं क्या बड़ा जुमला कहा है, वक्त आए तो पीछे मत हटो, वक्त ना आए तो आगे मत बढ़ो। शायद जुमला नहीं सुना रसूल का। रसूल ने क्या कहा था? इन्ना हाज़ान इमामान कामा और कहा था ये दोनों मेरे बेटे इमाम है, चाहे बैठ जाए या खड़े हो जाए। मैं क्या करूं बड़ा फरमाइएगा, ये दोनों बेटे मेरे इमाम है, चाहे बैठ जाए। क्या मतलब? यानी मेरा बेटा हसन भी इमाम है, चाहे सुला करके बैठ जाए तब भी इमाम है। और हुसैन चाहे करबला में तलवार लेके आ जाए तब भी इमाम है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। एक बार और सलावत पढ़िए मोहम्मद। तो ये है अहम शुजाअत का जुज़, ये है शुजाअत। वक्त आए तो पीछे मत रहो, वक्त ना आए तो आगे मत बढ़ो। इसे कहते हैं शुजाअत। जब रहबर ऐसा होगा, मैं क्या कह रहा हूं फरमाइएगा, तो कौम का मुकद्दर इज्जत बनेगी। लेकिन अगर कौम का रहबर बुज़दिल हो जाए तो फिर तलाश करने से भी इज्जत नहीं मिलेगी। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। मैं एक बार और सलावत पढ़िए मोहम्मद। बाज़ लोगों की मजबूरियां हैं आजकल, बीमारियां ऐसी हो गई कि बैठा नहीं जाता, तो मजबूरी में उठे। आप ये मत समझिएगा कि उनके मुताबिक मौजू नहीं चल रहा है। तो कहने का मतलब यह कि रहबर अगर घर का आलिम है, बहादुर है, घर का रहबर भी आलिम होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि माहौल का असर, याद है ना, बच्चों पे पड़ता है। तरबियत पे सबसे बड़ा असर, अगर बाप बुज़दिल हो जाए, अगर बाप बुज़दिल हो जाए तो फिर क्या होगा?
औलाद शुजा नहीं हो सकती। मैंने बड़ा जुमला कह दिया, जुमला कहो, क्या कहा था मौला ने? अकील ऐसा खानदान बताओ, ऐसा खानदान, ऐसा नहीं, बेटी नहीं, बेटी औरत नहीं बहादुर हो। शायद मैंने कहा था 3 सिफात ऐसी हैं जो मर्दों में अच्छी समझी जाती है, वही सिफात औरतों में बुरी। औरत का बहादुर होना बुरा है। बहुत से नादान खतीब पढ़ते हैं जनाब ज़ैनब बड़ी बहादुर थी। भाई बहादुर है भाई, शुजाअत उसमें। मैं क्या करूंगा वो फरमाइएगा। ज़ैनब बहादुर नहीं थी। अगर बहादुरी औरत के लिए जायज होती तो अम्मा को चमन में आने का जवाब मिल जाता। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। शुजा होनी चाहिए, शुजा। ऐसा घर बताओ, ऐसा खानदान। क्यों? क्योंकि असर आना है रहबर का, क्योंकि रहबर का असर आना है। और जब जाहिर सी बात खानदान बताया, शादी हुई और वो बच्चा है जिसका इंतजार हो रहा था, वो कितना बहादुर बना। मैं जुमला फिर कहता हूं, कितना बहादुर बना, कितना बहादुर बना कि करबला के शहीद 72 तो थे मगर गाजी अब्बास बने। भाई मैंने बड़ी बात कही है, करबला में शहीद तो 72 हुए मगर गाजी बस अब्बास बने। वजह क्या है? इस वजह से जनाब अब्बास में दोनों असर आए। जाहिर सी बात है जिसके दोनों नमूने, पहला नमूना भी शुजा था, दूसरा नमूना भी शुजा था, तो जाहिर सी बात है अब जो बच्चा 2 रहबरों का नतीजा होगा उसे अब्बास कहा जाएगा। यही वजह है दोनों का असर करबला में आया। एक टूटे हुए नेज़े से 9 लाख को भगा देना, यानी कि खून का असर था। पानी चुल्लू में भरने के बाद दरिया के मुंह पे मार देना, ये मुल्बनी के दूध का असर था। सलावत पढ़िए मोहम्मद। एक बार और सलावत पढ़िए मोहम्मद। बच्चों में असर आता है, बच्चों में असर। मेरे अजीजों, घर का माहौल अच्छा बनाइए। मैंने कल कहा था कि माँ बाप का छोटी छोटी बातों पे लड़ना, गालियां देना, जबान खराब इस्तेमाल करना, आप नहीं समझते। आपके यहाँ कोरी कापियां हैं, कापियां। ये बच्चे नहीं हैं, ये कोरे कागज पहन रहे हैं। गाली आपने दी, इस पे लिखी गई। झूठ आपने बोला, इस पे लिखा गया। फराड आपने किया, इस पे लिखा गया। मैं क्या कह रहा हूं, जैसा आपका माहौल होगा वैसा बच्चों में असर आएगा। पहला असर काय का है? ये है। दूसरा असर किताब का। आप गाफिल न बनिए, चेक कीजिए बच्चा कौन सी किताब पढ़ रहा है, इसके हाथ में कौन सी किताब है। ये गुमराह करने वाली तो नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं और फरमाइए। इसी वजह से हर घर के अंदर नहजुल बलागा और तौजील मसाइल का होना जरूरी है। अरे इतने पैसे ट्यूशन पे अंग्रेजी के खर्च कर देते हो, 100 रुपए की तौजील मसाइल घर में रखो। अगर तौजील मसाइल होगी तो खेलते कूदते 1-2 मसला भी पढ़ लिया तो शरीयत से बेखबर नहीं बनेगा, बाखबर हो जाएगा। कम से कम तौजील मसाइल हो। और तीसरी बात, गाफिल न होना। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके पास बैठ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं। बच्चा 2 बजे आता है, बड़े घर के चौराहे पे रात में चाय पी के न मालूम किसकी ग़ीबत करता है, न मालूम किससे बातें करने में मजे लेता है। ये देखना कि इसके साथी कौन है। याद रखिएगा, ये मुल्कों के शायर ने क्या खूब पहले हमने बचपन में सुना था, क्या था ना, बद की सोबत में मत बैठो, बद का है, और बद न बने तो बद अच्छा।
میں کیا کروں؟ غور فرمائیے عزیزان محترم، صحبت کا اثر آتا ہے، صحبت کا۔ اگر صحبت کا اثر نہ آتا ہوتا تو حبش سے چل کے آنے والی میمونہ پنجتن کی صحبت میں آ کے فضا نہ کہلاتی۔ صحبت کا اثر آتا ہے عزیزان محترم۔ یہ دیکھو بچہ کس کے ساتھ بیٹھا ہے، اگر یقین نہیں آتا صلوات پڑھیے محمد والے۔ قرآن مجید کا سورہ آل عمران ایک تربیت کا ذکر کرتا ہے۔ یاد ہے نا جناب حنا نے نظر مانی تھی۔ جناب حنا کون تھی؟ جناب مریم کی والدہ۔ بچے نہیں ہوتے تھے، دیکھا پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، پرندہ ہے جو اپنے بچے کو دانا چوچ سے چگا رہا ہے۔ ذہن پلٹا، انقلاب آیا، مایوسی کچھ ہے، جب اللہ اسے دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ وہی بیٹھے بیٹھے نظر مان لی، پروردگار اگر تو نے بیٹا دے بچہ دے دیا تو میں تیرے پیٹ کے حوالے کروں گی۔ قرآن کہتا ہے فلما وضعت، جب بچہ ہوا تو کیا تھا؟ لڑکی تھی۔ قالت انی وضعتها انثى، پروردگار میں نے تو یہ بچی پیدا کی ہے، ولیس الذکر کالانثى، اور بچی بچے کی جیسی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں کہا؟ ایسا نہیں ہے کہ لڑکی لڑکے جیسی نہیں ہوتی، لڑکی کسی چیز میں لڑکے سے پیچھے نہیں ہوتی۔ یہ کیوں کہا؟ اس زمانے میں بیت المقدس کے اندر عورتوں کی انٹری بند تھی، یعنی اس وقت وہاں پر بیت المقدس میں عورتوں کو نہیں روکا جا سکتا تھا، زیارت کرنا نہیں، وہاں روکنا۔ اور نظر کیا مانی تھی؟ جو بچہ پیدا ہوگا میں تیرے بیت کے حوالے کروں گی۔ بچی ہو گئی، ایک علیحدہ مکان بنایا گیا، کمرہ بیت المقدس کے برابر میں، نظر بھی پوری ہو جائے اور بیت المقدس کے شرائط بھی باقی رہے۔ چھوٹا سا کمرہ بنایا، جناب جو ہے مریم کو اس نے رکھا۔ اب قرآن کہتا ہے ایکم یکفل مریم، تم میں کون ہے؟ تمام علماء سامنے تھے، بتاؤ تم میں کون ہے جو مریم کا کفیل بنے گا، ذمہ دار بنے گا، پرورش کرے گا، تربیت کرے گا؟ میں جملہ کہو، اب جیسے ہی اللہ نے کہا فوراً علماء نے کہا میں مریم کا کفیل بنوں گا، ہر آدمی لڑنے لگا۔ اس وقت کے نبی نے کہا کہ ایسے بات نہیں بنے گی، یہ کرتے ہیں تم اپنے اپنے لوہے کے قلم کو پانی میں ڈال دو، جس کا قلم پانی پہ تیر جائے وہ مریم کا کفیل بن جائے گا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ لوہے کی فطرت ہے پانی میں ڈوب جانا، اور کفیل ہے رہبر۔ رہبر وہ ہوتا ہے جو فطرت کو موڑ دے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے، لوہے کی فطرت ہے پانی میں ڈوب جانا، اور رہبر اسے کہتے ہیں جو فطرت کو موڑ دے۔ سورج کی فطرت ہے مشرق سے نکلنا، اب جو مغرب سے نکال دے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے، ستاروں کی فطرت ہے آسمان پہ چمکنا، اب اگر کوئی ڈیوری پہ بلا لے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے گا، پانی کی فطرت ہے ڈبو دینا، اب اگر کوئی پانی پہ مسلح بچھا دے۔ اور فرمانے عزیزان محترم، رہبر اسے کہتے ہیں ہادی جو فطرت کو موڑ دے۔ کس نے کہا؟ علماء نے کہا۔ ٹیسٹ لیتے ہیں، امتحان۔ اچھا انصاف سے بتائیے، اتنا بڑا مجمع ہے، جناب مریم کا جو ہے مریم زیادہ ہے اہمیت کے اور فضیلت کے اعتبار سے یا ہمارے رسول؟ ارے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کافر بن جائے گا تو یہی کہنے کو دل چاہتا ہے جب کفیل مریم بغیر امتحان کے نہیں بنتا، جب کفیل مریم بغیر امتحان کے نہیں بنتا تو سرکار کا کفیل ایسے ہی کیسے بن گیا ہوگا؟ اور ہمارے عزیزہ نے بہت طرف امتحان لیا گیا،
सब ने अपने अपने लोहे के कलम डाले, सबके कलम डूब गए। जनाब जकरिया का कलम तैरता। किसी ने कहा नहीं हो सकता है, होते ना मीठ निकलने वाले, हो सकता है नीचे कुछ आ गया होगा, दोबारा डालो। दोबारा कलम डाला गया, फिर जनाब जकरिया का कलम पानी पे तैरता रहा। कहा नहीं तो बार हो गया, एक बार और। तीसरी मर्तबा डाला गया, फिर तैरता रहा। सूरह आले इमरान है, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जनाब जकरिया का कलम पानी पे तीनों मर्तबा तैरता रहा। सबने माना, एक मुसलमानों में कोई न था जो ये इख्तिलाफ करता कि जकरिया का कलम पानी पे नहीं तैरा। हर ने लिखा जकरिया का कलम पानी पे तैरता रहा, सबने माना, सबने लिखा। लेकिन जैसे ही मैंने कहा जब मेरा बारवा आएगा पानी पे मुसल्ला बिछाएगा, ईसा को नमाज पढ़ाएगा, तारक जो है दिमाग का जो है पत्ती गुल हो गई। ये कैसे हो सकता है, पानी पे कैसे मुसल्ला बिछ सकता है? अरे जब पानी में लोहे का कलम तैर सकता है तो पानी पे मुसल्ला भी बिछ सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जहन में है मौजू क्या है मेरा? तरबियत का असर होता है। माहौल कैसा बनाना है हमें, जैसे बच्चों को हम चाहते हैं। अब जनाब जकरिया को कफील बना दिया गया, कमरा बनाया गया था। जनाब मरियम को उस कमरे में रखते थे, बाहर से लोग लगाते थे, सुबह से शाम तक काम करते थे, फिर शाम में आते थे, चेक करते थे। फिर ऐसे ही हर रोज ऐसा होता था। कुरान का सूरह अल इमरान कहता है कुल्लमा दखलत अलैहि ज़करिया मिहराबा वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाहा यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। जब एक बार नहीं, जब ज़करिया आते थे ताला खोल के देखते थे। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मिहराबा वजदा इंदहा रिज़्क़ा, तो बेमौसम फल देखते थे। जब भी आते थे फल देखते थे। इसका मतलब कफील भी ऐसा था जिसको अल्लाह पर इतना भरोसा था। और मैं क्या कह रहा हूं, गौर फरमाइएगा, कितना भरोसा था। जब भी देखते थे फल रखे हैं बेमौसम। आजकल तो आम का जमाना है, आम का जमाना नहीं होता, आम रखे थे। अंगूर का जमाना नहीं, अंगूर रखे। सेब का जमाना नहीं, सेब रखे थे। बेमौसम जैसे देखा बेमौसम फल रखे हैं। जनाब जकरिया पूछते थे काला अन्ना लकी हाज़ा, क्या ये आपके हैं ऐ मरियम? तो जनाब मरियम कहती हाँ। काला हुवा मिन इंदिल्लाह। जनाब जकरिया पूछते कहां से आए थे? जब आपके हैं मैंने तो रखे नहीं, मैंने तो दिए नहीं, ये आए कहां से? कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह की तरफ से आए हैं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के देता है। मैंने हाथों को जोड़ के कहा ऐ ज़करिया, क्या आपको मरियम की बात पे शक है? क्या मरियम की तहारत पे शक है जो आप सवाल कर रहे हैं? आप मान लीजिए आए होंगे, तो लॉक लगा के गए हो, आपने लॉक खोला तो ये अंदर से कौन रख के चला गया? कब मुझे बिल्कुल शक नहीं है, मगर क्योंकि मैं कफील हूं, क्योंकि जिम्मेदार हूं, और तुम जिम्मेदारों को मैं एक दर्स दे रहा हूं कि देखो जब भी तुम अपनी औरतों के पास कोई ऐसी चीज देखना जो तुमने नहीं दी तो देख के खामोश मत होना, बल्कि सवाल करना जब हमने नहीं दिया तो ये आया कहां से? मैं क्या कह रहा हूं, गौर फरमाइए। जब भी तुम अपनी औरतों के पास कोई ऐसी चीज देखना जो तुमने नहीं दी तो तुम खामोश न होना देखकर, बल्कि सवाल करना जब ये मोबाइल नहीं दिया था तो आया कहां से? जब ये घड़ी नहीं दी थी तो आई कहां से? जब ये पर्स नहीं दिया था तो आया कहां से? अगर देख के खामोश हो गए तो माशरे में बेहयाई फैलेगी, लेकिन अगर देख कर तुमने सवाल कर लिया तो समाज इस्लामी माशरा बन जाएगा। हाथों में तुम्हारे है, चाहे खामोश
पूछो, जाओ चाहो सवाल कर लो, सलावत पढ़िए मोहम्मद एक बार और सलावत पढ़िए। तो जहेज़ी ज़ादे मोहतरम, तरबियत का असर होता है, तरबियत का। अच्छा, यहाँ पर तो एक मर्द है जो औरत से पूछ रहा है ये कहां से आए। गौर किया आपने? एक मर्द क्या पूछता है औरत से, कहां से आए। मगर जब हमने तारीख पढ़ी तो हमें यह भी मिला कि एक औरत है जो दो मर्दों से पूछ रही है कहां गए थे। नहीं मुतवज्जे नहीं हुए। यहां एक औरत है, एक मर्द है जो औरत से पूछ रहा है ये फल कहां से आए। मगर तारीख ने देखा तो तारीख ने लिखा एक औरत थी जो दो मर्दों से पूछ रही थी कहां गए थे। का मस्जिद में थे, क्या हो रहा था, का नाना का खुतबा था, खुतबे का मौजू क्या था, का नमाज होगा। मैंने हाथों को जो उंगलियां शहजादी क्या हसन हुसैन पर एतबार नहीं है, का नहीं एतबार तो है मगर क्योंकि जिम्मेदार हो, क्योंकि जिम्मेदार हो। मैं तमाम जिम्मेदारों को सबक दे रही हूं कि देखो जब तुम्हारे बच्चे बाहर से आए तो मालूम करना किसके पास बैठे थे, कहां बैठे थे। सलावत पढ़िए मोहम्मद कहां बैठे थे, किसके पास गए थे। अगर जिम्मेदार औरत अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर ले तो फिर माशरे में जहालत नहीं होगी। बड़ा जुमला कहा है, याद रखिएगा। समाज के अंदर चाहे जहालत हो या बेहयाई, इसकी जड़ में माँ बाप होते हैं, इसकी जड़ में माँ बाप होते हैं। यही वजह है कयामत के दिन एक ग्रुप बाकायदा अपनी औलाद की वजह से जहन्नम में डाला जाएगा। जब उन्हें बेतरबियती की वजह से, बेदीनी की वजह से जहन्नम की तरफ हुक्म होगा तो ये बीच में रुक के कहेंगे परवरदिगार हमारी गलती नहीं है, हमारे माँ बाप ने हमें पैदा तो किया मगर हमारी तरबियत की कभी नहीं सोची, लिहाजा तरबियत न करने की वजह से माँ बाप को भी जहन्नम में डाला जाएगा। इसलिए कि नस्ल बढ़ाना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी बच्चों को शरीयत से आगाह करना है। बच्चों को बताया जाए शरीयत के अहकाम, दीन के अहकाम। अजीजान मोहतरम, ये खाली फॉर्मेलिटी नहीं है। अल्लाह हमसे सवाल करेगा। माँ बाप का जहां औलाद की गर्दन पे माँ बाप के हुकूक हैं, उससे पहले बच्चों के भी हुकूक है माँ बाप की गर्दन पर। उन्हें तालीम देना, कुरान सिखाना, दीन के मसाइल बताना, ये वाजिब है माँ बाप के ऊपर। अब जब जाहिर सी बात है माँ बाप ही हिंदी में कुरान पढ़ते हो तो औलाद को काहे में उर्दू में सिखाएंगे अरबी में। मैं क्या कह रहा हूं जरा गौर फरमाइए। जब माँ बाप ही 10 बजे सो के उठते हो तो बच्चों से क्या कहेंगे सुबह की नमाज पढ़ा कर। मैं क्या कह रहा हूं गौर फरमाइएगा। हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा हम कहाँ हैं अजीजान मोहतरम। शायद मैंने आपको सुनाया था पिछले मर्तबा, याद नहीं है मुझे। एक इमाम, बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, टाइम ज्यादा नहीं हुआ। एक शख्स ने जो है इमाम सादिक की खिदमत में आके कहा था उसने कहा मौला मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ, क्या मेरी माफी हो सकती है। इमाम ने कहा अल्लाह तो गफूर रहीम है, तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। कहा मौला मेरा बहुत बड़ा गुनाह है। इमाम ने कहा क्या जितने कायनात में दरख्त है उनके पत्तों से भी बड़ा है। कहा मौला इससे भी बड़ा है। क्या पानी के कतरों से भी ज्यादा है। कहा मौला इससे भी बड़ा है मेरा गुनाह।
इमाम ने फरमाया क्या पहाड़ों के वजन से भी ज्यादा वजनी है तेरा घोड़ा? इमाम एक एक मिसाल देते गए। उसने कहा हाँ इससे भी बड़ा है। बहरहाल उसने आखिर में बताया कि मेरा गुनाह क्या था। मैं नहीं बताऊंगा वो गुनाह क्या था, लेकिन जब उसने बता दिया कि मेरा गुनाह ये था, चलिए मैं बता देता हूं। उसने कहा कि हमारे मोहल्ले में एक बहुत खूबसूरत लड़की का इंतकाल हुआ और जब उसे दफन कर दिया तो रात में मैं उसकी कब्र में गया और कब्र खोदकर मैंने उसके साथ जिना किया। क्या मौला गुनाह माफ हो सकता है? अब जुमला सुनिए। इमाम ने एक लंबी सांस ली और सांस लेने के बाद कहा ओह मैं सोच रहा था तेरी नमाजें सुबह कज़ा हो गई। मैं सोच रहा था तू जो इतनी बड़ी पत्तों के बराबर भी कहने पे कहता था मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। मैंने कहा पहाड़ों से भी ज्यादा वजनी है, तो कह रहा था मेरा गुनाह इससे भी बड़ा है। तो मैं इस सोच में पड़ गया कि शायद तूने नमाज़े सुबह को कज़ा कर दिया। बस इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। एक नमाज को छोड़ने का गुनाह कितना। अल्लाह अकबर। उन लोगों का क्या हाल होगा? अजान हो रही है, गीबत में मसरूफ है, अजान हो रही है, उन्हें पता ही नहीं। अजीजान मोहतरम, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, वरना फिर वो जमाना बहुत करीब आ चुका है, बहुत करीब है। शायद हमारे जमाने से बिल्कुल मिल जाए, जब वो आएगा जहां पार्टी बंदी बिल्कुल नहीं चलेगी, उसकी तलवार हक और बातिल को देख कर चलेगी। जिसके दादा की तलवार नस्लें देख के चलती हो, जब वो जुल्फ़कार चलाएगा कितनी चीजें हमारे सामने नहीं होंगी और हम यही कहेंगे नया दिन कौन सा आ गया। अज़ीज़ान मोहतरम, इतना आसान दिन नहीं है। करबला वालों ने इसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आप सोच सकते हैं 1400 साल गुजर गए, हम जरा सी शहादत सुनते हमारा क्या हाल होता है। हम अहले बैत की मुसीबतें सुनते हैं, हमारा क्या हाल होता है। हम शाम गरीबा की वो परेशानियां सुनते, क्या हाल होता है। आप सोचिए कि खुद इमामों का क्या हाल हुआ होगा। इमाम फरमाते हैं कि ऐ मेरे जद हुसैन, मैं आप पर खून के आंसू रोता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई सोच सकता है करबला? अच्छा, करबला तो छोटी सी मुसीबत थी, करबला के बाद तो क़यामत सुगरा आ गई। अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर कितनी मुसीबतें पड़ी हैं। ये जो रिवायतें आप जिक्र और सुनते हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है, ये रिवायतें कुछ भी नहीं है। और इन रिवायतों के बाद भी पूरी तारीख कूफा और शाम में दो बातें आज तक रावी नहीं बता सका, आज तक रावी नहीं बता सका। पहली बात ये नहीं बता सका कि जनाब सैयद सज्जाद की पुष्ट पर कितने ताजियाने लगी, कोई रावी नहीं बता सका। और एक बात ये नहीं बता सका कि सकीना की प्यास कब बुझी, कोई रिवायत नहीं बताती, कोई रिवायत। आप सोचिए जरा, इशारे मिलते हैं मगर कहीं पर भी ये नहीं मिलता सकीना की प्यास कहां बुझी। पानी आता हुआ मिला? जनाब सज्जाद के पोस्ट पर ताजियाने अभी कोफे की तरफ चल रहे थे, जो है अचानक याद है ना, वो सर जिस पर हुसैन का सर था, वो नेजा कोहली के हाथ से छूटा और जमीन में नस्ब हो गया। जहां पर भी काफिला रुकता था, शिव किसी से कुछ नहीं कहता था। जानते किससे कहता था? इमाम सज्जाद से। और बात नहीं करता था, ताजियाना मारता था, ताजियाना, पुष्ट पर ताजियाना मारता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब नेजा लगा है ना और काफिला आगे नहीं बढ़ता, हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ता, तो पिसरे साथ से शिव ने कहा कोई बात नहीं है, अभी मैं बताता हूँ। और इमाम सज्जाद के सामने लाकर नेजे को लहराया और लहराने के बाद कहा कि बताओ तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता। इमाम सज्जाद का जुमला सुनिएगा, इमाम सज्जाद ने क्या फरमाया। इमाम सज्जाद सर हुसैन के पास आए और आने के बाद कहा बाबा, बाबा अब
इस बीमार में ताजियाने खाने की ताकत नहीं है। मैं जो आपको बताना चाहता हूं जुमला सुनिएगा। इमाम का जुमला, बाबा अब सज्जाद में ताजियाना खाने की ताकत नहीं है। अभी काफिला कहां से कहां पहुंचा है? अभी काफिला जो है करबला से अभी दरमियाने कूफा में है। तब कूफे पहुंचने से पहले सैयद सज्जाद की पुश्त इतनी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी कि पुश्त पर कोई जगह ऐसी न थी जिस पे तुरने का निशान न हो, जिस पे तुरने का निशान न हो, जिसमें ताजियाने का निशान न हो। अरे सोचो, जब इस हालत में यह हाल हो गया तो कूफे तक का क्या हाल हुआ होगा, शाम की मंजिल में क्या हाल हुआ होगा। अल्लाह अकबर। अरे यही वजह थी जब मोहम्मद हनफिया गले लगे सज्जाद के तो एक मरतबा चीख मार के सज्जाद ने कहा, ए चचा मुझे छोड़ दीजिए। कबरहार क्या? अरे गुस्ताखी हो गई। कहा नहीं चचा, ताजियाना के साथ लो। अजर को अल्लाह, अजर को अल्लाह। उधर कोई जन्नत है सिवाय हमें हुसैन के। पहली बात किसी तारीख में किसी रिवायत में नहीं साबित है। दूसरी बात, जनाब सकीना की प्यास कब बुझी कि कोई नहीं बता सकता। पानी आता हुआ मिला, मगर सकीना ने पिया या नहीं पिया? याद है ना, शाम गरीबा हो की जौजा पानी लेकर आई तो जनाब ज़ैनब ने सकीना को दिया था। तो जनाब सकीना ने कहा, फिर अम्मा मुझे क्यों दे रही है? मेरे लाल तो सबसे छोटी है, पहले छोटों को दिया जाता है। तो सकीना कोजा आग लेके पुष्ट कहबा की तरफ चली। तो अम्मा मुझसे छोटा तो मेरा भैया असगर है, मुझसे छोटा तो मेरा भैया असगर है। पानी नहीं पिया सकीना ने। इसके बाद रास्ते में, कूफे के रास्ते में पानी आया। उम्मे हबीबा लाई पानी, दुआएं तो मिलती है मगर कभी ये नहीं मिलता पानी सकीना ने पिया या नहीं पिया। दुआएं मिलती है ज़रा। हाँ, जिंदान शाम में इशारे मिले। एक मौके पे सकीना ने सैयद सज्जाद से कहा, भैया ये बताओ, प्यास जब पड़ती है तो इंसान के बदन पर क्या असर होता है? इंसान के बदन पे क्या असर होता है? इमाम ने फरमाया, बहन सकीना, उसके हलक में कांटे पड़ जाते हैं। जनाब सकीना ने कहा, भैया अगर प्यास और बढ़ जाए, अगर प्यास और बढ़ जाए, कहा उसकी पसलियां चटकने लगती हैं। कहा भैया अगर प्यास और बढ़ जाए, भैया प्यास और बढ़ जाए, कहा फिर उसकी पसलियों में सुराख होने लगता है। जनाब सकीना ने कहा, भैया अगर प्यास और बढ़ जाए, जुमला सुनोगे जरा। इमाम सज्जाद ने कहा, फिर उसके बदन से उसकी खाल छूटने लगती है। जुमला बस यहाँ पर तबाद करता हूँ। उसके बाद उसकी क्या होती है? खाल छूटने लगती है। अब सकीना ने आगे कोई जुमला न कहा, जुमला एक कहा, ये सैयद सज्जाद, ये मेरे भैया, मेरी एक वसीयत है, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर थोड़ा सा